I am hungry for profit by default, right? Because I'm running a business और मुझे लगता है हर किसी को ऐसे ही होना चाहिए. मम्मी यू क्या है, क्यों आपने ये स्टार्ट किया? और आपने जब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात की है तो सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको सुनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं. मम्मियों को जब स्टार्ट किया गया था, द आइडिया वॉज बेसिकली टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल विजडम विच इज अराउंड pregnancy and parenting, right? This was the idea. It was very important for me to make the right choices from the right beginning. मैं गुड़गांव में रहती हूँ. I'm settled here from past almost 18 years. लेकिन I belong to Himachal. There was this, innate desire that I should do something for my homeland. And because I'm well aware of the skill, the ability of these women and wisdom of these indigenous midwives. So when I say indigenous midwives, different regions of India में उनको different नाम से बुलाया जाता है. हिमाचल में हम लोग उनको दाई के नाम से बुलाते हैं. ये एक ट्राइब है हिमाचल में जो इंडिजिनस है, and we are actually talking about the last generation of them. Those who have delivered almost 200 to 300 babies in their lifetimes. They have handled breech babies. They have handled babies with very fast or dipping heartbeats and still delivered them normally. So I'm talking about that kind of knowledge and skill and talent, right? So it was important that somebody brings this knowledge to the modern world and let them kill all the taboos which are around the ancient wisdom. So I really wanted that. तो उसके लिए products was the basic idea, because of course it's not an NGO. I wanted to run a profitable business. So I had to sell things and I wanted to sell products which are around this wisdom. अब वो products बनाने के लिए I'm sitting in the hub, I'm sitting in Gurgaon. I have factories all around. I live nearer to Manesar. I live nearer to Delhi. So I compared the cost. Now come to the cost part. That it was easier for me to take this idea to the world through finally taking the product to one of the factories here and get it made here, right? मैं design लेके जाऊंगी, मेरा product बनेगा, and it will roll out into the market. One is that. Second, I had the option that I take the idea to these women, make the product in Himachal, and market it and sell it from there. Now, when I talk about these two options that I had, the most feasible one and the most practical choice जो आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि आप गुड़गांव में रहते हो, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतने मास्टर जीज हैं, इतने डिजाइनर्स हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ बनाओ and start selling. Now, second comes is that no, I want to increase my profit making probability or capacity from day one. So I take the idea to these women, I discuss it with them, and then we decide that okay, I have my own property and we can start making these products in Himachal with the help of these women, but we will take one expertise from Delhi. We will take one consultant from Delhi and make these products there. So this is, I'm just giving you a brief idea. So by just doing this, I reduced the cost by 92%. The product, so I'm giving you a very simple example. I have kept one thing ready with me, so I just wanted to give you a very practical thing. This is a क्लूफा, राइट? ये मम्मियों का वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट है. क्लूफा को बेसिकली हम बेबीज को नहलाने और प्रेग्नेंट बेली को सूथ करने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, ये प्रोडक्ट है. अब इस प्रोडक्ट में जो हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं या जो भी इसकी कॉस्ट है, अगर मैं इसको यहाँ बनाती हूँ, दिल्ली एनसीआर में बनाती हूँ, एक फैक्ट्री को इसका कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेटअप होगा, तो ये प्रोडक्ट मुझे 175 रुपीज का पड़ता है, right? After choosing the right fabric from here and there, I make it for $50. That's a huge gap, and this gap can be bridged only when you use your common sense. यूज कॉमन सेंस. थोड़ा रिस्क होता है, आपको अपना मार्केट से हट के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपकी डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चंस भी उठते हैं. लाइक मेनी पीपल आस्क्ड मी इनिशियली, इनफैक्ट ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स I was asked that why to go to Himachal and then make it there and then bring it here and then sell it, because I'm reducing my cost by many folds. That means I'm increasing my profits by many folds. So ये just एक example है. अब
इसके पीछे सिर्फ राइट वेंडर चूज करना ही आइडिया नहीं है, राइट प्रोसेस चूज करना भी है कि हाउ आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट, आप अपना बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट कैसे करना चाहते हो। क्या आप सिर्फ एक सेट पैटर्न को फॉलो करोगे जो कि चलता आ रहा है, जो कि सेट बिजनेस हाउसेस ने एक सेट कर रखा है, आप सिर्फ उसको फॉलो करना चाहते हो, या आप एक अपना स्टोरी बनाना चाहते हो अपने तरीके से, बाय यूजिंग योर बिजनेस सेंस प्लस योर कॉमन सेंस एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, दैट लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। बाय डूइंग दैट, और उसमें प्रॉपर एनालिसिस लगा के आप इवैल्यूएट कर लो कि यार इतना कॉस्ट बचा लिया मैंने। हियर जस्ट गिविंग अनदर एग्जांपल, देन आई विल कम स्ट्रेट टू द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट। अगर मैं एक वेल इस्टेब्लिश एक्सपोर्ट हाउस के मास्टर जी को एक सैंपल बनाने के लिए कहती हूँ, आई एम गिविंग वेरी क्रूड एग्जांपल, एक सैंपल बनाने के लिए कहती हूँ फॉर वन गारमेंट, दैट मास्टर जी विल चार्ज मी 5,000 रुपीज, राइट, फॉर मेकिंग वन सैंपल। आई हैव 51 SKUs आज की डेट में। सो नाउ द पर्सन हु इज मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स फॉर मी, जो मेरे लिए बैठ के, मैं एक की बात कर रही हूँ, आई हैव अ टीम, I pay him or her on an average 7,500 a month. Right? And this is something which is in the like government regulation of Himachal Pradesh. तो वहां 7,500 में I get to make at least 10 to 15 samples in a month. और यहाँ पे वो एक सैंपल मेरा 5,000 में बनता है, जिसमें फैब्रिक भी मेरा है. So this is the difference in the cost. But and not just this, I'm giving this employment का opportunity for so many women जिनके पास ये टैलेंट है, उनको भी सिलना आता है, उनकी भी ट्रेनिंग हुई हुई है, it's just that उनको opportunity मिल रही. Now they have, so it's a win-win situation. क्यों एक सही वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? Why you should not simply jump कि जो पहला दिखा वेंडर उसको चूज कर लिया. It's because number one, cost. लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस चलाना है, आप एक एमए प्राइस पे पूरा बिजनेस नहीं चला सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट मिले, एंड नाउ दिस बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द राइट क्वालिटी यू वांट. आपको क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. सो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड द कॉस्ट, बिकॉज दीज टू थिंग्स एंड देयर कॉम्बिनेशन कैन मेक और ब्रेक द बिजनेस. और खासकर जो बहुत छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, I can go to any smaller level you want, because you know I have helped a pickle business also, I've helped a handloom business also, I've helped people open their cafes also, like candle making हो गया और आपका handloom businesses होते हैं, इनसे मेरा direct connection है. यहाँ पे आपको vendors चाहिए, तो आप सबसे पहले कॉस्ट का ध्यान रखें कि आपको मिनिमम कॉस्ट करना है, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे आपका प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. कोई चीज आप 10 में बना के 20 में बेच रहे हो, या कोई चीज आप 5 में बना के 20 में बेच रहे हो, बहुत स्कोप है प्रॉफिट का, राइट? सेकंड कम्स आपका क्वालिटी. नाउ जब आप वेंडर से बात कर रहे हो, 50 तरह के वेंडर मार्केट में होते हैं, ऑल ऑफ देम ऑफर डिफरेंट क्वालिटीज, राइट? तो आपको एक बहुत अच्छा मिक्स बिठाना होता है कि कहाँ पे मुझे मेरे डिमांड की क्वालिटी मिल रही है इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. ये डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म बिजनेस का है, तो आपका वेंडर चॉइस, वेंडर सिलेक्शन या कोई भी बिजनेस डिसीजन बहुत ही थरो और बहुत ही थॉटफुल एंड ऑलवेज बहुत ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग होना चाहिए. वो उसमें आपका स्केल क्या है मैटर नहीं करता. हो सकता है आप एक दिन की 5 चीजें बेचते हो, एक चीज बेचते हो, या 500 चीजें बेचते हो, मैटर नहीं करता. कॉस्ट हर जगह मैटर करेगी, right? Cost and quality. So I think these are only 3 reasons. One is cost, one is quality, and third is sustainability. Can you share an example where a good vendor relationship led to significant cost savings? See, ज्ञान देने से बेटर होगा मैं अपनी गलतियां शेयर करूं. कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट, बिकॉज आई 100% बिलीव इन टेकिंग रिस्क्स एंड देन मेकिंग अ चॉइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Please always keep your own antennas on when it comes to the term of, जब आपको चूज करना है वेंडर को. हर बिजनेस सेम नहीं होता. लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ कैंडल मेकिंग पर्सन, और मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को फोन करके पूछ रही हूँ कि यार मुझे पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट है, तो कोई वेंडर बता दो. एंड देन अदर, ये जो दूसरे हैं ये पेंटिंग्स बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो ये मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेंडर रिकमेंड करेंगे, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद दिस वेंडर. बट शायद वो मेरी बिजनेस नीड को सूट नहीं करता है, क्योंकि मेरा शायद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, शायद ये नहीं बैठेगा ठीक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे भले ही रिकमेंडेशन हो,
उस recommendation के साथ आप कम से कम 5 shortlisted vendor लेके चलें and then take a decision. So one is that I just wanted to clarify. When I started, तो मुझे raw material to make the apparels that I make, maternity wear बनाने के लिए जो मेरा first collection निकलना था, जो 2019 में निकला था, वो निकालने के लिए fabric चाहिए था. So to do that, we wanted कि best nearest vendors कहाँ होंगे. So we had somebody on board जिन्होंने हमें guide किया. एंड बिकॉज मैं गारमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, आई एम एन एचआर पर्सन, सो आई ऑलवेज वांटेड एडवाइस एंड आई वांटेड एक्सपर्ट्स टू गाइड मी. तो हमें ये ज्ञान दिया गया, ये रिकमेंडेशन थी दैट आई शुड बाय ऑल माय फैब्रिक, द रॉ मटेरियल फ्रॉम नेहरू प्लेस. दैट वाज द मार्केट रिकमेंडेड. So yes, we ventured into Nehru Place, and for 2019 and 20 and 21 during the COVID times also, we actually sourced all our raw material, all our fabric from Nehru Place. And this is a wholesale market. It's a beautiful market. And during COVID times, where I was at the peak of my smart decision making and I wanted to optimize the cost to best possible, क्योंकि मुझे survive करना था during COVID, because there were no sales practically happening, I realized that this was a wrong choice. This was the best available option, but it did not suit my business needs. ये बहुत important है समझना. जो आपके आसपास best possible option होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी business requirement को suit करे. So don't go for best, go for the fit, go for the right fit. You know, ये बहुत important है. अब मैं नेहरू प्लेस से जो फैब्रिक उठाया होगा मैंने उस वक्त, जब वो बन के आता है, उसमें एक मेकिंग कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट लगती है, शिपिंग कॉस्ट लगती है, फिनिशिंग कॉस्ट लगती है, देयर 100 कॉस्ट्स अटैच्ड. सो मैं देख रही हूँ कि मेरा मार्जिन इज अराउंड 50 to 60%. आई एम हंग्री फॉर प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट, राइट, बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस, और मुझे लगता है हर किसी को ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है. सो मैं कैलकुलेशन करने बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरा मार्जिन 50% आ रहा है ऑन एन एवरेज एवरीथिंग. लेकिन क्या मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकती हूँ प्रॉफिट को? क्या मैं इसको थोड़ा कम कर सकती हूँ, स्पेशली जब कोविड टाइम में मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, राइट? तो दिस केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो और लोगों से बात करके, बहुत मार्केट रिसर्च करके, लेफ्ट राइट घूम के, फाइनली वी फिगर्ड आउट दैट आई गेट द सेम क्वालिटी, exact same kind of fabric at Chandni Chowk, right? And वहां पे मुझे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है. मेहनत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रांसपोर्टेशन, गोइंग देयर एंड रिसर्चिंग. सेकंड, वहां पे हर फैब्रिक का अलग वेंडर है. लाइक इफ यू वांट टू बाय डबल गॉज कॉटन, जो मेरा प्राइम फैब्रिक है, उसका वेंडर अलग है. उसमें अगर आपको बेबी प्रिंट चाहिए तो उसका वेंडर अलग है. फिर अगर आपको कॉटन चाहिए तो उसका वेंडर अलग है. उसमें आपको मैटर्निटी वाली फील चाहिए तो वो वेंडर अलग है. वो फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेरिब्रल वर्क. लेकिन एक बार अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया तो आप देखोगे कि आपका मार्जिन 80 to 85% पहुंच जाता है, राइट? तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है, और वो भी ऑन एन एवरेज, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि आपके आसपास आप पूछो, गूगल पे सर्च करते हैं हम सबसे पहले, आइडियली बेस्ट वेंडर फॉर कॉटन गॉज फैब्रिक अराउंड मी, तो वो एक रिजल्ट आ जाता है. वी ऑल नो इट इज पेड मार्केटिंग. वी ऑल नो कि सबसे पहले बेस्ट आएगा, उनके 1000 रिव्यूज होंगे, वी रीच देयर, हमें लगता है हमने बेस्ट वेंडर सेलेक्ट कर लिया. बट वो बेस्ट फॉर एन ओवरऑल सिनेरियो है, आपके बिजनेस नीड में फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब हमने वो चांदनी चौक वाले वेंडर्स फिगर आउट किए, देन आई रियलाइज दैट आई वाज stupid enough to choose Nehru Place. Though their quality is amazing, everybody should go there, लेकिन it doesn't suit my business needs. So it's important कि आप रिसर्च करके फिर चूज करें वेंडर को, क्योंकि कॉस्ट कहाँ की कहाँ चली जाती है, ये आई हैव एक्सपीरियंस्ड. One was that example. I'll share one more example which was about packaging. तो जब पैकेजिंग के डिसाइड हुआ था, हम लोग को हम एक पैकेट में, एक फैब्रिक के पैकेट में बेच रहे थे, जो कि हमारा ही बाय प्रोडक्ट था, तो मेरी कॉस्ट जीरो थी. मेरी पैकेजिंग जीरो कॉस्ट पे चल रही थी, तो मेरे को बहुत सूट कर रहा था वो चीज. लेकिन एक पॉइंट आया जहां हमारे प्रोडक्ट बारिश की वजह से खराब होने शुरू हो गए ड्यूरिंग द शिपमेंट, राइट? तो ये एक चैलेंज मुझे सॉल्व करना था. तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर कार्डबोर्ड बॉक्सेस विच विल कीप अंदर प्लास्टिक रैप करके उसको इंटैक्ट रखेंगे. अब उसके वेंडर्स हम ढूंढ रहे हैं. नाउ देयर आर सो मेनी फैक्टर्स.
बहुत फैक्टर्स हैं जो मैंने भी अपने आप को एजुकेट किया है कि एक तो आता है बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स नॉर्मल, एक आता है कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें पिन्स लगी होती हैं, एक आता है कार्डबोर्ड बॉक्स विदाउट प्रिंट, एक आता है विद प्रिंट, एक आता है 2 लेयर्ड, एक आता है 3 लेयर्ड, और एक आता है फोल्ड होके कोरोडेड बॉक्स, एक आता है नॉर्मल बॉक्स। देयर आर 1000 वैरायटीज और सबकी कॉस्ट बहुत अलग है। आपको विद प्रिंट चाहिए, आपको लोगो प्रिंट कराना है, उसकी कॉस्ट अलग है, विदाउट प्रिंट की कॉस्ट अलग है। अब आप पहले तो आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। अब आप उससे रिलेटेड वेंडर ढूंढो। अब आपको वेंडर मिलेगा, एक मिलेगा बोलेगा मैं सिर्फ बॉक्स बनाता हूँ, मैं प्रिंट नहीं करता। आप बोलोगे मैं प्रिंट कर दूंगा, बिकॉज हर बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री के साथ एक प्रिंटिंग वाला बैठता है, दैट्स अ गिवन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट कैसे काम करती है। अब आप उसको बोलोगे चलो ठीक है आप प्रिंट भी करा दो, तो वो प्रिंटिंग का 2.75 रुपीज आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो आपका एक बॉक्स जो आपको 20 रुपए का पड़ना था, अब वो आपको 22 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है? अब आप एक ऐसा वेंडर ढूंढो जो प्रिंटिंग भी करता हो, मार्केट सेंस ये कहती है, जो प्रिंटिंग भी करता हो। अब वो वेंडर ढूंढेंगे आप, फिर वो आपको वही बॉक्स जो है 18 रुपए का पड़ जाएगा विद प्रिंटिंग। तो ये वाली मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एवरी सिंगल मर्चेंडाइज यू शुड सी व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। सिंपल रिकमेंडेशन पे ना जाएं। ये करके ही आई हैव सेव्ड अ बिग लॉट ऑफ मनी ऑन माई पैकेजिंग। एक बॉक्स जो मुझे इनिशियली मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई वांटेड विदाउट पिंस, बिकॉज वी डिलीवर इंटरनेशनली ऑल्सो, एंड विद पिंस बॉक्स इंटरनेशनली डिलीवर नहीं हो सकता है। विदाउट पिंस बॉक्स आपको आराम से, इफ यू गो टू दीज वेंडर्स जो आपके हर जगह खुले हैं लाइक प्रिंटो एंड ऑल दीज, ये आपको 40 रुपए में एक डब्बा बना के देंगे। और अगर आपकी अपनी खुद की स्पेसिफिकेशन है, दे विल आस्क यू फॉर 5000 मोर। सो यू चूज अ लोकल वेंडर। मैंने बहुत लोकल वेंडर चूज किया है जो कि बिल्कुल दे हैव अ वेरी स्मॉल सेटअप, लेकिन उन्होंने मुझको मेरे साइज का, मेरी रिक्वायरमेंट का डब्बा बना के दिया है, एंड आई हैव बॉट इट इन बल्क एंड आई गॉट इट फॉर 8 रुपीज। क्या वार्निंग साइंस होते हैं किसी वेंडर को सिलेक्ट करते वक्त इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट? एज आई सेड अभी अर्लियर ऑल्सो, तो लिखा कीप योर कॉमन सेंस एंड योर एंटीनाज ऑन ऑल द टाइम। पहली बात, ऑलवेज गो फॉर अ पायलट ऑर्डर, ऑलवेज। कभी भी पूरा मुझे 2000 डब्बे चाहिए, मैं ऑर्डर 10 का या 20 का या 40 का या 50 का ही दूंगी। उतना रिस्क मैं ले सकती हूँ, राइट? मैं बिजनेस करने बैठी हूँ, उतना मैं लेके चल रही हूँ, सो मैं वो दूंगी। ऑलवेज स्टार्ट कि मुझे डाउट हो रहा है, मुझे डब्बा देखना है, मैं पर्सनली विजिट करूंगी। फैक्ट्री कहीं महिपालपुर के आगे इंटरनली कहीं जाके है, कोई बात नहीं, मैं खुद आऊंगी, मैं डब्बा चेक करूंगी, मुझे एक बार देखना है, मुझे फैक्ट्री देखनी है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, ये आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। आपके वेंडर्स के साथ आपको पर्सनली मीट करना ही है, नो मैटर व्हाट, राइट? और वेंडर के साथ एक ऐसा डीलिंग होता है जो आपको लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि तब आपकी कॉस्ट बचती है। वो कैसे बचती है, आई टेल यू कि क्या तरीके हैं जिससे कि आप एक वेंडर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो और पैसा वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे चलता है, वो भी होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक रिलेशनशिप बिठाना पड़ता है। आप लंच पे ले जाओ वेंडर को, बैठो वेंडर के साथ, वेंडर की फैक्ट्री जाके विजिट करो, चेक करो उनके क्या ऑर्डर्स हैं जो चल रहे हैं, कौन से ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, पुराने किसको डिलीवर किया है, सैंपल चेक कर लो। 1000 चीजें हैं जो की जा सकती हैं। सेकंड, एक अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आपके सर्कल में है तो आई थिंक ये दिक्कत आती नहीं है। वुमेन्स हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, दे गेट दिस। यहाँ पे दे अंडरस्टैंड इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू फूल और इज ट्राइंग टू वो सब समझ में आ जाता है। मुझे वो चीज इतनी डाउटफुल नहीं लगती। बस मुझे लगता है कि कहीं कोई पैसे के मामले में आपका बेवकूफ ना बना जाए, राइट? बिकॉज वी कम विद दिस इनेट फीलिंग कि यार नहीं ठीक ही कह रहा होगा क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सो आप ये सोच के बैठो कि नहीं ये स्मार्ट डील करनी है मुझे। आप मुझे सैंपल दिखा दो, चलो पुराने जिसको आपने दिया था, लास्ट डिलीवरी किसको दी थी मुझे बताओ। अच्छा दिखा दो एक डब्बा आपने बनाया होगा, अच्छा हमारा डब्बा कैसा बनेगा, ये चिपक नहीं रहा है, ये चिपक क्यों नहीं रहा है, कुछ भी, बट जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस तो आपको क्लैरिटी आ जाए, तो रिलायबिलिटी आएगी। बट गिव अ पायलट ऑर्डर, नेवर गिव एन एंटायर ऑर्डर, कभी भी। कैसे हायरिंग मिस्टेक्स की वजह से बिजनेस को कितना नुकसान उठाना पड़ता है? से हायरिंग, यू राइट तुलिका, 12-13 साल मैंने की है, बट वहाँ पे भी हम लोग हमेशा कंपनीज के लिए एक बेस्ट फिट ढूंढते थे। लाइक हमारे गिवन बजट में कौन है जो उतना ही क्वालिफाइड है और किस कंपनी से उठा के उसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, ऐसे हायरिंग वर्क करती है। लेकिन जब आपकी बिजनेस के बारे में बात हो रही है ना, तो वहाँ पे अगेन आई एम सेइंग, आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो,
आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत बेसिकली है नहीं. देर इज नो सच रूल. जब हमने इनिशियली हायरिंग करी थी, आई वॉज क्लियर कि मुझे हिमाचल में बनाना है, और हिमाचल के जो लोग हैं दे आर नॉट वेरी एम्बिशियस, स्पेशली वुमेन. वो इतने एम्बिशियस नहीं है, दे आर हाईली स्किल्ड, बट उनके लिए फैमिली टाइम और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं. आई एम प्राउड ऑफ दैट कि उनकी प्रायोरिटीज क्लियर है, राइट. सो अब आप उनको ऐसा क्या ऑफर करो कि वो काम भी करें लेकिन उनकी अपना जो लाइफ का बैलेंस है वो ना निकले. अब सिंपल है, आप उनको प्रोजेक्ट बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे हायर कर लो. वो आपके हेड काउंट पे नहीं आ रहे. दे आर नॉट माई परमानेंट एम्प्लॉइज, but they work for me and they have been working for me from 7 years now. Now what they do is वो मेरे पास 4-4 घंटे काम करते हैं. ये मेरी कंपनी में अपने तरीके से चलाऊंगी. ये चीज है जो मैं सबको समझने के लिए, आई मीन आई ऑलवेज encourage people to understand that it's your story. So I work in 3 shifts. First shift of women comes for 4 hours, second shift comes for 4 hours, and third shift comes for 4 hours. Like this. None of them are my permanent employees. They are all working on per hour basis. But they are loyal to me because उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस बैठा हुआ है. उन्होंने अपना दिन हिसाब से डिजाइन किया हुआ है. मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मैं ड्रॉप करती हूँ, यहाँ आती हूँ, काम करती हूँ, फिर जाती हूँ, पिक करती हूँ, घर जाती हूँ, लाइक दैट. मैं बच्चे को सुला के आती हूँ और मैं रात को खाना बना के आती हूँ, लाइक दैट. सो दिस इज हाउ आई वर्कड माई वे अराउंड इट. सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. वन इज दैट, मेरा काम चल रहा है 12 घंटे, विच इज मैक्सिमम. लाइक इससे ऊपर कोई फैक्ट्री काम नहीं करती है. 12 घंटे काम चल रहा है विदाउट ब्रेक, लेकिन नन ऑफ देम इज ओवर वर्किंग. वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चल रहा है. वन इज दैट. सेकेंड इज आप प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग कर लो. जैसे कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा है कि यार अगले 3 महीने मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी कोई जरूरत लगेगी, कि ये हम कर लेंगे, इंटरनली हायर हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग कर लो. प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मर्चेंडाइजिंग या बाइंग के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने अपनी ही फैमिली में से एक एक्सपीरियंस्ड एक वुमेन है, उनको पिक किया एंड आई टोल्ड हर दैट सी आई हैव दिस बजट. मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको हर महीने 40,000 50,000 दूं. आप प्रोजेक्ट कर लो मेरे साथ, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आई गिव यू 50K. आप हैंडल कर लो सारा, पूरा समझ लो, पूरा संभालो. 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, देन यू लीव. इट्स अ प्रोजेक्ट. आई एम नॉट बाउंड टू दिस पर्सन. ये मेरे हेड काउंट में नहीं है. ऑन प्रोजेक्ट बेसिस में काम करा रही हूँ. वाइल शी इज वर्किंग आई एम लर्निंग ऑल्सो. मैं उनके साथ हूँ. जब वो मार्केट जाती है मैं साथ जाती हूँ, वो वेंडर से बात करते हैं मैं साथ जाती हूँ, वो बायर से बात कर रहे हैं मैं साथ जाती हूँ. इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आई एम लर्निंग. मैं सब सीख गई. एंड आफ्टर 6 मंथ्स आई पे हर अमाउंट, शी गोज एंड आई स्टे देयर एंड नाउ आई लीड दिस प्रोसेस. सिंपल थिंग्स. आप कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, और स्किल पे हायर करना होता है हमेशा. नेवर हायर ऑन जेडीज, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए. तो मैंने एक सिंपल सा एक गोल रखा हुआ है हायरिंग के लिए. तेरे सिंपल मोटो that hire for zeal or hire for potential, don't hire for capabilities या don't hire for experience. अगर आपको दिख रहा है कि ये लड़की या ये लड़का बहुत zeal है, इसमें बहुत potential है, ये कर लेगा, just hire this person. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसके पास तो है ही नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो कहती है 6 years तो चाहिए, इतना पैसा, देन यू आर इनटू दैट ट्रैप. वो एक टाइम के बाद यू विल फाइंड दिस पर्सन वेरी एक्सपेंसिव, यू विल वांट टू फायर हिम और फायर हर. It's an unending loop. So hire for skill and zeal, nothing else. नेगोशिएशन हम कैसे करें वेंडर्स के साथ? अगर आपके पास कोई टिप्स है तो आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताओ. 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो मैं बहुत यूज करती हूँ, मेरी टीम बहुत यूज कर रही है. पहली बात, आपको प्लान करना है आपका बाइंग अगले पूरे साल का बाइंग प्लान करके चलें हमेशा. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड, आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया है, आप नेगोशिएशन करने टेबल पे बैठे हो, चूज द एंडिंग डेट्स ऑफ एनी क्वार्टर. अगर आप क्वार्टर के लास्ट में जा रहे हो, आई एम टेलिंग यू विल गेट द बेस्ट डील ऑलवेज. उनकी कुछ टारगेट उनके टारगेट्स होते हैं और उनको क्लोज करना होता है ऑलवेज. या तो अगर आप एनुअल बाइंग करते हो तो ऑलवेज गो इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट. और अगर आप क्वार्टर बाइंग करते हो तो गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर. एंड ऑफ द क्वार्टर में जाएं, 30th 31st के आसपास जाएं, 28th 29th के आसपास जाएं, गो अराउंड दैट टाइम. इट्स वेरी, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. ये पता होता है यूजुअली कि अभी हमें बेस्ट डील मिलेगा. सेकेंड इज नेगोशिएशन करते हुए ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपके वेंडर का पेन पॉइंट क्या है. व्हाट इज द पेन पॉइंट. आपके वेंडर ने जब आपसे बात करी थी तो उसने क्या कहा था कि जी मैं 500 का बना दूंगा, 1000 का ऑर्डर तो नहीं बना सकता मैं, है ना. तो आपने समझ लिया कि बल्क में ऑर्डर नहीं बना पाता है, पेन पॉइंट है. सेकंड, हाँ जी मैं बना तो दूंगा लेकिन इस डेट पे मैं डिलीवर वहां नहीं कर पाऊंगा,
तो ये आपने सेकंड पेन पॉइंट समझ लिया है। अब आपने ये ऐसे कोई भी पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, आपने इन्हीं पेन पॉइंट्स पे प्ले करना है कि देखो रिक्वायरमेंट तो मेरी ये है, फिर भी मैं आपको चूज कर रही हूँ, लेकिन आप देखो आप ये भी नहीं कर रहे हो, तो अब इसमें थोड़ा तो यूज दैट, यूज साइकोलॉजी कि ये मुझे करना है। ऑलवेज गिव द लोएस्ट बॉल पार्क फिगर, बट डोंट साउंड स्टूपिड। लाइक आपको पता है, आप मार्केट रिसर्च करके बैठोगे नेगोशिएशन करने की, यार बेस्ट है 20 रुपए, ये 50 बोल रहा है, तो आप 5 नहीं बोल सकते नेगोशिएशन करते हुए। दैट जस्ट किल्स द एनवायरमेंट ऑफ द नेगोशिएशन। ठीक है, तो आप स्टार्ट नीचे से करोगे, आप 12 बोलोगे, 18 आएगा, 20 तक आ जाएगा। बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वेंडर नेगोशिएशन करते हुए। ऑलवेज whenever you are talking to the vendor, shipping cost vendor की होनी चाहिए। This is something which you must understand, like the shipping of the product to you will always be handled by the vendor। और ये हम भूल जाते हैं क्योंकि हम कॉस्ट नेगोशिएशन में इतना इन्वॉल्व होते हैं, ये हम भी कर चुके हैं बहुत, कि हम बोलते हैं अच्छा बना दो, एंड देन कम्स द डे ऑफ द डिलीवरी, वो बोलेगा हाँ जी भिजवाओ बंदा, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ, आप बोलो, और वो फ्रीट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आप नेगोशिएशन करने बैठे हैं, डिलीवरी पार्ट विल बी टेकन केयर बाय द वेंडर, आपका वहां पे भी कॉस्ट बचता है, राइट। ऑल्सो अगर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करते हो, आप बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करते हो, सो ऑलवेज से 30% अभी दूंगी, 70% डिलीवरी पे दूंगी, ओके, यू नो, लाइक दैट। और नेवर पे 50-50, ये नहीं होता है, देर इज नो सच थिंग। और अगर 3-4 साल हो गए एक ही वेंडर के साथ आप बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, आपकी एक नेगोशिएशन हो चुकी है, पिछले बिल्स रखो, पिछले बिल्स दिखाओ, कोई बात नहीं, पुराना रिलेशनशिप है, लाइक दैट। Entertain your vendors if they are old vendors. Please entertain. I've seen women entrepreneurs hesitate a little from entertaining their vendors. You should not. Take them out for lunches. I've said it twice. You know, give them gifts on Diwalis. So these are the things. Also, लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स ले सकते हैं। आपने 2 लाख का सामान उठा लिया, कोई नहीं अभी 50,000 देते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर में करते हैं, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। What's the best way to handle a dispute or issue with a vendor while maintaining the business relationship? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लूज योर कूल, यू वांट टू कंटिन्यू दिस। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इस वेंडर के साथ काम करना है कि नहीं करना है। एक तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फायरिंग पीपल, डोंट बी अफ्रेड, कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई वेंडर अच्छा नहीं लग रहा है, काम भी अच्छा नहीं है, चिक चिक बहुत ज्यादा है, जस्ट फायर दिस पर्सन, किसी और को ढूंढ लो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इफ आपको वेंडर पसंद है, आपको वेंडर का काम पसंद है, आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी एक चीज पे डिस्प्यूट हो गया है, आई थिंक बहुत एमिकेबली एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाओ। अगर आपको 10% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कर लो, बिकॉज द साइकिल आफ्टर विच आपको वो वेंडर गंवा दिया, फिर आपने वो दोबारा ढूंढना है, टाइम इज मनी। आप अपना दिमाग कहीं और लगाओ। वो इट्स लाइक कोई भी डिस्प्यूट हो गया, बहुत एमिकेबली उसको हैंडल कर लो। सर समझ लो सर, थोड़ा वे यू हैंडल योर रिलेशनशिप्स, हैंडल इट लाइक दैट। बट बी क्लियर कि क्या आपको इस वेंडर के साथ एसोसिएशन रखना है कि खत्म करना है, काम नहीं चल रहा है, देन जस्ट फिनिश इट, देयर इज नो नीड टू एंटरटेन। What should small businesses track regularly to identify cost cutting opportunities? स्मॉल बिजनेस के लिए एक तो पहले डिपेंड करता है बिजनेस क्या है। सबके बिजनेस अलग अलग होते हैं ना, ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है जो मैं अपने बिजनेस के लिए करती हूँ सबके लिए अलग अप्लाई होता है। ये तो है ही चीजें, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव एनालाइज्ड इट, वी डिड अ स्टडी ऑन दिस। हम लोग पैकेजिंग पे बहुत लेफ्ट राइट एंड सेंटर स्पेंड करते हैं। We don't need that much spend on packaging. We can keep simple packaging, like eco-friendly, simple cardboards or packets are enough. We don't need to do multiple packaging. एक तो ये चीज है that this can be reduced, slashed to 50%. प्लास्टिक के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा, और उसमें फिर एक कार्ड और 10 चीजें, और वो not needed. One is that. Second, जो आप रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो, आई थिंक योर डिलीवरी पार्ट। डिलीवरी में ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, I don't know if the businesses here consider this, but आपका डिलीवरी कॉस्ट बहुत चेंज हो जाता है। I don't know how, if you've seen it. We have many initially बहुत सारे डिलीवरी वेंडर्स थे। Now we are on Shiprocket. I'm just telling my vendor to you, and I have multiple options. पड़ रहा है जो हाँ, इसको ले लो। तो वो मुझे को 10 ऑप्शन दे देता है, और वो मेरे को बता देता है कि इसकी रेटिंग ये है, और वो मेरे को बताता है ये पैसे इतने लेगा,
और ये इस टाइम पे डिलीवर करेगा, अब आप चूज कर लो, You राइट? get options. यू हैव ऑप्शंस. सो समटाइम्स व्हाट आई डू, अगर मेरा इंटरनेशनल डिलीवरी है तो मैं कोई और वेंडर चूज कर रही हूँ, और अगर मेरा डोमेस्टिक डिलीवरी है, दिल्ली का है, तो मैं कोई और चूज कर रही हूँ, साउथ का है तो कोई और. बट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम चूजिंग who's delivering right on time, also जिसका मिनिमम कॉस्ट है. मैंने इंडियन पोस्टल सर्विसेज से भी डिलीवरी कराई हुई है, अच्छा. राइट? इन प्लेसेस लाइक लद्दाख आई हैव डिलीवर्ड, वहां पे इंडियन पोस्टल सर्विस से डिलीवरी हुई है. बट अगर मैं नहीं सोच रही हूँ इस बारे में, तो मैं सिंपली डीटीडीसी को कॉल करूंगी और बोलूंगी डिलीवर कर दो. ही विल चार्ज मी 500. Yeah. आई गॉट इट डिलीवर्ड फॉर लाइक 95 और 100 रुपीज. बहुत फर्क है. सो आई थिंक गो फॉर कॉन्स्टेंट, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. छोटा डिसीजन नहीं होता है कोई भी बिजनेस का, हर डिसीजन आपकी कॉस्ट बचाता है. जो आपका बिजनेस है, जो आपने अपनी मेहनत से स्टार्ट किया है, आपका जो सपना है, वो बस आपका है, Yes. राइट? उसमें आपको, क्योंकि वो ऐसे कर रहा था, या एक सेटअप बिजनेस में ऐसे चलता है, या नहीं ये ऐसे ही होता है वाली स्ट्रैटेजी, उससे बाहर निकलिए. आई मीन जस्ट कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट. यू कैन डू इट योर वे, द वे यू वांट इट, और उसमें आप कॉमन सेंस लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा. बिजनेस सेंस करते करते आ जाता है, आप 10 गलतियां करते हो फिर सीख जाते हो, राइट? लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो ज्यादा बेटर है. इसमें कौन से बिजनेसेस ने कैसे ग्रो किया, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर उसमें उनका एक स्ट्रगल दिखता है कि फिर मैंने ये किया, फिर उसको कॉपी करने की कोशिश. ये ना करें. इट्स योर स्टोरी, राइट इट योर वे. आप अपने तरीके से चलाएं. या तो हम खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, या हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. लेकिन आई फर्मली बिलीव फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियली एजुकेटेड होना, राइट? यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन स्टिल यू विल बी फाइनेंशियली रिलायंट ऑन समवन और नॉट इंडिपेंडेंट अगर आपको पता नहीं है उस पैसे के साथ करना क्या है, what to do with that money, you know, कहाँ लगाना है, सेव करना है, खर्च करना है, क्या करूं. मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं, मम्मियों में ही बहुत सारी ऐसी होंगी जो नहीं कमा रही हैं, लेकिन दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज दे नो व्हाट टू डू विद एवरी सिंगल रुपी, यू नो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लें तो फाइनेंशियली कोई गुफअप ना करें प्लीज. सारे बिजनेस डिसीजंस गलत ले सकती हैं आप, वेंडर गलत चूज कर सकती हैं, सब कुछ, लेकिन कॉस्ट में जहां पैसे की बात आ गई वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हर बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट. दैट्स इट.